In lecture number seconds, we are discussing the parts of organic chemistry. The stereochemistry. The meaning of the stereo means space. As we can say, volume, solid. So that is which occur the space, volume or solid. It is called as the stereo, and this is called as the chemistry. It is called as stereochemistry. The father of the stereochemistry is what scientist Louis Pasteur, who got the Nobel Prize for the work of what stereochemistry. That stereochemistry means what? The study of two-dimensional molecule is converted into the three-dimensional molecules. How we can say that 2D is converted into the 3D? So that is the part of the imagination. As you can say, the study of the imagination, imaginary chemistry. टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में करना है. जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल से मीथेन मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग द हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, और इट इज one हाइड्रोजन एटम्स इज above the plane and one हाइड्रोजन एटम इज below the plane. So as you can say, these hydrogen atoms are showing this is the above the plane and another is what below the plane. So this is called as the below the plane. This is one below the plane and this one what above the plane. So another 2 hydrogen atoms are on the same plane. यहाँ पे हम इसको कहेंगे same plane. In methane molecules there is what this one directional, as you can say one unity, this another, this is second one and this one is third one. So that is we can say this is the three-dimensional molecules. This methane molecules having the three-dimensional molecules, how we can represent? That is one of the above the plane, this one is the below the planes, and another plane it is called as what? This is the same plane. ये एक हाइड्रोजन एटम इसके पीछे होगा तो एक हाइड्रोजन इसके अपोजिट मतलब सामने होगा. सो दैट इज कॉल्ड अबव द प्लेन एंड अनदर इज कॉल्ड बिलो द प्लेन. ये दो प्लेन हो गए. उसके बाद में एक सेम प्लेन आएगा. दिस इज द हाइड्रोजन एटम इज शोइंग दिस इज द सेम प्लेन. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 3D मॉलिक्यूल. So as you can say CH4 molecules, that is the CH4 molecule 2D molecule is converted to the 3D molecule. So as you can say, this is the study of the 2D molecule is converted into the 3D molecules. As we call this is the study of what? Imaginary or two-dimensional molecule is converted into three-dimensional molecules which occupy, as you can say, which occupy space, volume and solid, as you can say solid. So this is called as what? Stereochemistry. What is the branch? As you can say isomer. यहाँ पे हमें देखना है isomer क्या होता है. So means what? Do you mean by isomer? Iso means what? The meaning of iso means main. Iso means same. And this mer means what? As you can say units or parts. Units or what? Parts. So what I can say, this iso means same and mer means parts. So definition means what? A compound having same molecular formula but different properties of molecules, different structural arrangement is known as isomer. अब आइसोमर में यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं. पहला होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और दूसरा है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दिस इज अनदर इज व्हाट स्टीरियो आइसोमर. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में हम डिस्कस करते हैं दैट बेसिक पार्ट यू हैव बीन लर्न इन 11th and 12th स्टैंडर्ड. दैट इज द चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म. यहाँ पे एट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट इज MSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 103. यहाँ पे हमें ये लर्न करना है, ये पढ़ना है कि स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमें ये डिस्कस करना है कि सिस ट्रांस क्या होता है, ईचर आइसोमर क्या होता है. व्हाट इज द सिस, what is the trans, what is the E isomer and Z isomer. यहाँ पे conformational isomer, as you can see, optical isomer. ऑप्टिकल आइसोमर में हमें देखना है डेक्स्ट्रो क्या होता है,
लियो रोटेशन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है, उसके बाद में हमें यहाँ पे आर और यस कंसेप्ट को समझना है। तो आर मीन्स व्हाट, रेक्टस होता है, और यस मीन्स व्हाट होता है, सिनिस्टर। The meaning of what? This meaning of what? As you can say, rectus and sinister. Sinister and what? Rectus. Clockwise direction, anti-clockwise direction. ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे उसके बाद में हमें देखना है कि इनैंशियोमर क्या होता है और डायस्टेरोमर क्या होता है। This concept will learn about optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमर में हमें ये देखना है इनैंशियोमर क्या है, डायस्टेरोमर क्या है, और इसका फाइनल प्रूफ क्या होता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको हम बेटा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डेक्स्ट्रो एंड लियो, डीएल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। सो एज द पार्ट ऑफ हियर आइसोमरिज्म। अब आइसोमर को हम ये यहाँ पे पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर। सो स्टीरियो आइसोमर में हमें सबसे पहले ये देखना है सीस और ट्रांस, मतलब फर्स्ट यहाँ पे हम पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर? द कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर मींस व्हाट, a compound must be unsaturated. कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। टू ग्रुप यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए एंड टू ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पे लेना है हमें y। देखो बेटा x और यहाँ पे लेते हैं y एंड y, मतलब ये दो सेम है, ये दो सेम है, और ये एक दूसरे के डिफरेंट है ना, एक दूसरे के कैसे ये डिफरेंट है। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन टेक अ सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ग्रुप लेते हैं हम, यहाँ पे x और यहाँ पे लेते हैं x। So here we can take another group, that is y, और यहाँ पे लेते हैं y। Similar group are on same side to the double bond। जब सेम ग्रुप डबली बॉन्डेड पे सेम साइड पे होते हैं, सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज सीस आइसोमर। इसको कहा जाता है सीस आइसोमर। यहाँ पे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं एक्स एटम, और यहाँ पे लेते हैं एक वाई एटम्स, यहाँ पे है वाई एटम्स। सो कैन टेक दिस इज द एक्स एंड हियर एक्स एंड हियर व्हाट, डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे लेना है हमें एक्स, यहाँ पे लेना है वाई और वाई। देखो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप आर ऑन व्हाट, अपोजिट साइड। In unsaturated hydrocarbon, if the unsaturated, लेकिन कैसा होना चाहिए, doubly bonded, not triple bond, must be doubly bonded, not a triple bond। कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दो ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप ऑन सेम, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर, and this is known as what, cis isomer। यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे सामने है, this what is the example we can take, this is what, so this example is represented what, you can see this chlorine atom, these two chlorine atoms, see here two chlorine atoms are on same side, it is called as the cis isomer। if two chlorine atoms are on opposite side, trans isomer। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को भी कंसीडर कर सकते cis and trans। So this concept, as we can say, geometrical isomer, cis और trans। यहाँ पे हम different example ले सकते हैं। So you can take this ethyl group and ethyl group here। So
So this one is ethyl group, this one is the ethyl group, this one is methyl, and this one is the methyl. So this is called as what? Trans isomer. Same group on opposite side, trans isomer. Same group on same side, cis isomer. लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, if we are having the different four group attached to what? Unsaturated hydrocarbon. different four group, यहाँ पे हम different four group अटैच करते हैं, जैसे कि so that is we can take. What is the concept here? See, we can say these types of isomer is what? If we are having, this is the group, that is A, B, C and D. ये फोर डिफरेंट ग्रुप हम अटैच करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को. तो यहाँ पे हम इसको ना सिस कह सकते हैं ना ट्रांस कह सकते, नॉट अ सिस नॉट अ ट्रांस. फिर ये क्या हुआ? So this is called as what? The next concept it generated, that is called as that E-enantiode isomer. What do you mean by chad? Chad means what? Glucosamine. This long form, this is glucosamine, and E for antigen. Antigen. It, as you can say, E means what? Enemy. Enemy कहते हैं ना? Enemy what? So यहाँ पे E से opposite याद रखना है. Opposite. Enemy always क्या होता है? Opposite होता है. E से एनिमी अपोजिट, और Z से याद रखना यहाँ पे सेम, सिमिलर, सेम glucosamine, अपोजिट, एंटीजन अपोजिट. सो सिस आइसोमर एंड व्हाट? ट्रांस आइसोमर. यहाँ पे हम उसको नहीं कहेंगे E-enantiode आइसोमर कहेंगे. जब फोर डिफरेंट ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डायरेक्टली अटैच होते हैं, तब कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट होता है बेटा E-enantiode आइसोमर. तो यहाँ पे इसको समझते हैं E-enantiode आइसोमर को कैसे फाइंड आउट करना है. सपोज मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पे लिया कुछ ग्रुप डिफरेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे लेते हैं हम आयोडीन. हम यहाँ पे प्लेन पास करेंगे. सबसे पहले प्लेन पास करेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. एक नंबर इसको देना है, 2 नंबर इसको देना है. ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्लोरीन से. यहाँ पे देखो आयोडीन का नंबर ज्यादा है, 1 नंबर दे दो. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है बेटा. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास नंबर ज्यादा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. 1 2 1 2. फिर उसके बाद क्या करना है? इसको मिटा देना है. जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसको हमने क्या किया? मिटा दिया. अब हमें देखना है यहाँ पे कार्बन एक और एक सेम साइड पे आया, 2 और 2 सेम साइड पे आया, इसको कहना है छड़ आइसोमर. काय म्हणायचं बेटाला? छड़ आइसोमर. एक और एक सेम साइड पे आया, डबली बॉन्डेड से सेम, छड़ आइसोमर कहना है. कभी अपोजिट साइड पे आता है एक और एक, तो उसको कहते हैं बेटा ई आइसोमर. जैसे कि हमारे सामने ये एग्जांपल है, देखो. सो दैट इज हाउ वी कैन ड्रॉ दिस लाइन. 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है. फिर इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, एक और एक सेम साइड पे आया, इसको कहा छड़ आइसोमर. सेम यहाँ पे देखते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 नंबर आएगा, ये नंबर 2 नंबर आएगा. एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. 1 नंबर इसका आएगा, नंबर 1 नंबर इसका आएगा, नंबर 2 इसका आएगा. एक और एक अपोजिट साइड पे आया तो इसका नाम आएगा ई आइसोमर. काय म्हणायचं बेटाला? त्याला म्हणायचं ई आइसोमर. व्हेरी सिंपल है ना. अपोजिट साइडला असेल 2 ग्रुप, सेम ग्रुप, एक अपोजिट साइडला आला, ट्रान्स म्हणायचं. इथे ट्रान्स नाही, ई आणि छड़ आइसोमर आहे. अपोजिटला आला 1 आणि 1, 2 आणि 2, तर त्याला ई आइसोमर म्हणायचं. सेम आलं तर त्याला छड़ आइसोमर म्हणायचं. वेरी सिंपल. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ई एंड छड़ आइसोमर. यहाँ पे हमारा ई छड़ आइसोमर कंप्लीट होता है. अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है दैट नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आइसोमरिज्म इन व्हाट? द कंसेप्ट फॉर दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी. व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. As you can say, optical activity.
व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट? नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? सोर्स ऑफ लाइट, SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे मैंने ले लिया, उसको मैंने पास किया किसमें से? निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म। सोर्स ऑफ लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन पास होगा, सिंगल लाइन को बोलते हैं PPL। क्या नहीं चला? पापा की लाडली, पापा की लाडली, क्या नहीं चला? ऐसा होना चाहिए, कैसे? पापा पापा की लाडली, ऐसा होना चाहिए, पापा की लाडली। प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे पास होता है, सिंगल लाइन यहाँ पे मिलेगा बेटा। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, इंस्ट्रूमेंट में हमें कंपाउंड ऐड करना है, इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड ऐड करना है। कैसा टाइप्स का कंपाउंड यहाँ पे ऐड करना है? सो दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू दिस व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज व्हिच कंटेन द टू टाइप्स ऑफ व्हाट कंपाउंड। दो टाइप्स के यहाँ पे कंपाउंड लेना, एक कंपाउंड यहाँ पे बोलो बी कंपाउंड। अब मैंने कहा कि ये कंपाउंड कैसा होना है, ये कंपाउंड मैंने सपोज ऐसा लिया, ऐसा मतलब कैसा बेटा? कार्बन यहाँ पे लिया मैंने, CHO यहाँ पे लिया, OH और यहाँ पे लिया, H और यहाँ पे लिया, CH3, असा कंपाउंड मी ते घेतला। म्हणजे या कार्बनला 4 डिफरंट ग्रुप बनायचे आहेत, म्हणजे याचं नाव काय झालं? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। या ग्लिसरॉल्डिहाइडच्या ऐवजी आपण ग्लुकोज मॉलिक्यूल घेऊ शकतो किंवा लॅक्टिक ऍसिड घेऊ शकतो। मला याच्यामध्ये काय करायचं? ग्लिसरॉल्डिहाइड किंवा लॅक्टिक ऍसिड टाकायचं। लॅक्टिक ऍसिड मी याच्यामध्ये घेतला, मग आता काय करायचं पुढे? लॅक्टिक ऍसिड किंवा ग्लुकोज किंवा ग्लिसरॉल्डिहाइड मी ज्यावेळेस यामध्ये ऍड करतोय बेटा, त्यावेळेस काय होतं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट ज्यावेळेस मी याच्यातून पास करतोय तब क्या होता है? यहाँ पे मुझे 2 डायरेक्शन मिलेंगे, दो मतलब कैसे? एक वाला ऐसा और एक वाला ऐसा। ऐसा मतलब कैसा? ऐसा मतलब पैसा, पैसा वाला नहीं, पैसा ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी काकाची एंटी लेते, एंटी म्हणजे लेफ्ट साइडला। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या? यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब रोटेट होता है इसको कहा जाता है क्या? लगाना जोड़ा लियो रोटेटरी। एक डेस्टो रोटेटरी मिळणार आणि एक लिओ रोटेटरी मिळणार आणि कसा मिळणार? तो कैसा मिलेगा? 50%। वनडे मॅच पाहिजे ना, वनडे मॅच 50 वर्ष असते म्हणजे ती 50-50 20-20 टेस्ट सीरीज। 50% डेक्स्टो मिलेगा और 50% लियो मिलेगा, इसको कहते हैं आर्यम। आर्यम मतलब राम नहीं म्हणायचं, काय म्हणायचं त्याला? रासायनिक मिक्सचर। इसको कहते हैं बेटा रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर याला म्हणायचं। काय म्हणायचं? रेसमिक मिक्सचर। अब ये 50-50 मिलेगा कब मिला? जब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड या लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया तब। मतलब ये जो कार्बन एटम्स है, यहाँ पे हमें यहाँ देखना है कि ये कार्बन कैसा है? कायरल है, कायरल कार्बन कशाला म्हणायचं? असिमेट्रिक कशाला म्हणायचं? ज्या कार्बनला 4 डिफरंट ग्रुप वाटायचे आहेत, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। असिमेट्रिक कार्बन इसको कहते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल जो आहे तो कायरल मॉलिक्यूल झाला बेटा, त्याला असिमेट्रिक मॉलिक्यूल असं म्हणायचं। हा मॉलिक्यूल मी इन्स्ट्रुमेंट मध्ये टाकला, त्याच वेळेस मला 2 डायरेक्शन मिळाले, एक क्लॉकवाइज आणि एक अँटी क्लॉकवाइज।
एक क्लॉकवाईज डायरेक्शन मिळाला त्याला मी डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणलं, जो अँटी क्लॉकवाईज मिळाला त्याला मी लिओ रोटेटरी म्हणलं. मग या दोघांचं मिळून जे मिक्सचर तयार झालं त्या मिक्सचरला मी रासायनिक मिक्सचर म्हटलं. हे कधी पॉसिबल आहे? ज्यावेळेस कायरल मॉलिक्यूल इथं आपण घेतो या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये, त्याच वेळेस हे पॉसिबल आहे बेटा. मग या मॉलिक्यूलला काय म्हणायचं? ओए म्हणायचं. ओए 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 म्हणजे काय? म्हणजे ऑप्टिकल, ए म्हणजे ऍक्टिव्ह. या कन्सेप्टला आपण इथं म्हणलं बेटा ऑप्टिकली ऍक्टिव्हिटी. When this optical activity is possible if the molecules must be chiral. ये कायरल मॉलिक्यूल जब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में लेते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स के डायरेक्शन हमें मिलेंगे, एक डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी. तब जाके ये इसको हम रासायनिक मिक्सचर कहते हैं. रासायनिक मिक्सचर का डेफिनेशन हम ऐसा बता सकते हैं, एन इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर डेक्स्ट्रो एंड लियो इज नोन एज अ रासायनिक मिक्सचर. एन इक्विमोलर मिक्सचर ऐसा बोला, डेक्स्ट्रो एंड लियो इज नोन एज रासायनिक मिक्सचर. यहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है. इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट, सेट, गेट, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, हाउ मेनी chiral molecule, how many chiral center, what is an optically active molecules. So this process is known as what? Optical activity. क्या कहा? And a source of light is passed through Nicol prism. The light of rays emerging out of it and got a single light. That single line is known as optically activity. Sorry. That single line is known as plane polarized light, and when which is passed through the organic compound, organic solvent, and then we will get two types of the rays, that is clockwise direction and anti-clockwise direction. 50% clockwise, 50% anti-clockwise. When it is possible, if we can take these chiral molecules, a symmetric molecule, then we got two types of the direction, and this process is known as what? Optically activity. मग आता ज्यावेळेस मी इथं बी इथं लिहितोय, बी कसा? जर असा घेतला, असा म्हणजे कसा? इथं CS3, इथं CS3, इथं पण CS3, इथं H किंवा इथं CS3, म्हणजे या कार्बनला, या सेंट्रल कार्बनला चार ग्रुप कसे बेटा? बेटा कसे ग्रुप आहे? सिमिलर ग्रुप आहे. जर सिमिलर ग्रुप असेल तर त्याला कायरल म्हणायचं नाही, असिमेट्रिक म्हणायचं नाही. मग काय म्हणायचं? कायरल. हा मॉलिक्यूल जर मी या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये घेत असेल तर काय होणार? मग मला दोन डायरेक्शन नाही मिळणार, तर काय मिळणार? सिंगल रेज मला मिळणार. कसे बघा, जसे घेतले तसेच. म्हणजे कसे? जसे मी स्टार्टिंगला इथं घेतलं, कसा? सोर्स ऑफ लाईट निकोल प्रिझम मधून मी पास केला, इथं मला सिंगल रेज मिळाले, त्याला मी पापाची लाडली म्हटलं, पापाची लाडली प्लेन पोलराइज्ड. मग मी काय केलं? एक इन्स्ट्रुमेंट घेतलं, त्याच्यामध्ये हा कंपाऊंड घेतला. हा म्हणजे कसा? असा. हा मॉलिक्यूल मी याच्यामध्ये घेतो, त्यावेळेस मला काय भेटतं? काहीच नाही भेटत. मग करतो कसं करे बाबा? तसं आहे तसंच भेटतं ना, मग करून काय फायदा? नाही फायदा. म्हणून तर बघायचं आहे. मग याला काय म्हणायचं? ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह म्हणायचं. या प्रोसेसला ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह म्हणायचं. जसं होतं तसंच मिळालं, जसं होतं, जसं स्टार्टिंगला रेज घेतलं तेच फायनलला मिळालं. मग अशा वेळेस याला आपण काय म्हणायचं? ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. मग क्वेश्चन हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह संदर्भात पण असू शकतो, ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह संदर्भात पण असू शकतो. मग या प्रोसेस यामध्ये आपण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आणि ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह काय आहेत ते शिकलो. मग आता काय बघायचं बघा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें लिखना है एनान्शियोमर एंड डायस्टीरियोमर. वेरी सिंपल.
इनॅन्शियोमर काय असतं आणि डायस्टेरियोमर काय असतं ते आपण बघूया बेटा. कन्सेप्ट सोपा आहे, समजून घ्यायचा आहे. व्हॉट इज द इनॅन्शियोमर एंड डायस्टेरियोमर. ये कंसेप्ट समझने के पहले हम सबसे पहले फिशर फार्मूला को समझते हैं. कुछ फार्मूले हैं. कौन से फार्मूले हैं? जैसे कि स्टार्टिंग हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर. कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मध्ये आपल्याला बघायचं आहे बेटा व्हेरी सिंपल. यामध्ये आपल्याला काही फॉर्म्युले बघायचे. न्यूमन कन्फॉर्मेशन, साहास कन्फॉर्मेशन आणि फिशर कन्फॉर्मेशन. त्यामध्ये अपन सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिशर कन्फॉर्मेशन को. क्या है बेटा फिशर? फिश मतलब फिश जैसे दिखने वाला. साहस मतलब घोड़े जैसे दिखने वाला. ये कन्फॉर्मेशन के नाम है अलग अलग. न्यूमन कन्फॉर्मेशन, फिशर कन्फॉर्मेशन, साहस कन्फॉर्मेशन. हमें इसमें जाके देखना है एनान्शियोमर काय असतं, डायस्टेरियोमर काय असतं. याच्यामध्ये काही रूल्स आहे जे की आपल्याला फॉर्म्युला रिटर्न करायचा है. यामध्ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ. एक पर्सन यहाँ से निकला बेचारा, इसको जाना है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक रास्ता उसको तय करना है. कहाँ से? औरंगाबाद से निकला. कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाते? चलो नजदीक जाएंगे. औरंगाबाद से मतलब सेंट्रल से निकले हम, है ना, बस स्टैंड से निकले. यहाँ से बस स्टैंड है और बस स्टैंड से उसको जाना है उस्मानपुरा जाना है. क्या होगा? ये जो रास्ता वो पार कर रहा है और उसके साथ मतलब दो वेटेड कंपाउंड उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है. समझ लो एक 100 kg का है और एक 10 kg का है. ये 2 वेटेड कंपाउंड इसके पास देना है और उसको बोलना है विदाउट व्हीकल, विदाउट साइकिल, विदाउट व्हीकल, विदाउट साइकिल लेके जाना है. 100 kg वाला और 10 kg वाला उसके पास दे दिया. क्या करेगा? देखो ये कंसेप्ट रिलेटेड है, जुड़ी हुई है फिशर कन्फॉर्मेशन से. कैसा लेके जाएगा बोलो? हाँ नहीं वैसा नहीं. क्या बोल रहे हैं? कंधों पे लेके जाएगा, सिर पे, हाथ में लेके तो जाएगा ना. तो वो तो मतलब एक तो यूज करेगा वो, एक तो हैंड यूज करेगा, नहीं तो कंधा यूज करेगा, नहीं तो सिर यूज करेगा. यूज तो करना है लेकिन लेके जाने का तरीका देखो बेटा कैसा है. 100 kg वाला जो है वो 100 kg वेट वो ऊपर है ना, उसके मतलब हेड पे रखेगा और 10 kg वाला हैंड पे रखेगा. क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है तो हेड पे लेगा, जिसका वेट ज्यादा है वो टॉप पे लेगा. तो यही कंसेप्ट यहाँ पे फिशर में हमें समझना है बेटा. क्या समझना है? देखो ये जो है हम जो फिशर रिटर्न करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने COH लिया, यहाँ पे मैंने लिया बेटा 2 कार्बन एटम्स, CH3 यहाँ पे लिया CH3, क्लोरीन एटम्स यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे लिया मैंने CH2OH. ये फिशर रिप्रेजेंटेशन मैंने किया. जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर ज्यादा है उसको टॉप पे लिखा जाता है बेटा. ये तो फिशर का रूल है. और जिसका एटॉमिक नंबर ना मास नंबर कम है, जैसे कि मैंने ये फार्मूला आपको बताया CH2 और यहाँ पे लिया मैंने CHO एल्डिहाइड और यहाँ पे लिया मैंने OH. कैसे लिखेंगे हम इसको बोलो? CHO जो है वो टॉप पे लिखेंगे और ये CH2OH है ये बॉटम पे लिखेंगे. ये कार्बन एटम से ये CH2O या CH2OH यहाँ पे लिखेंगे OH. So this is called as what? फिशर कन्फॉर्मेशन. इसका ये फिशर कन्फॉर्मेशन हुआ. अब इस फिशर कन्फॉर्मेशन में हमें देखना है आरियस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. उसके पहले एक कंसेप्ट को हम समझते हैं. देखो बेटा क्या कंसेप्ट है.
फिशर की हम बात करते, लास्ट के में 5 या 10 मिनट आपके लेता हो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझने के लिए। देखो बेटा COH मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने COH, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे है एल्डिहाइड, ऐसा मतलब कौन सा भी फंक्शन ग्रुप हम यहाँ पे ले सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्लोरीन एटम ले लो, क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा ग्रुप हम ले सकते हैं OH ले लो, हाइड्रोक्सी ग्रुप ले लो, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक। इसके शरीर का हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन टेक दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन टेक दिस हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैसे है, कैसे है मतलब इन फिशर कन्फर्मेशन। हम फिशर कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो फिशर कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम दिख रहे बेटा, सेम साइड पे है। फिशर कन्फर्मेशन के सेम साइड पे हाइड्रोजन एटम होता है तर त्याला काय म्हणायचं बेटा, इरी म्हणायचं, इरी इरी इरिथ्रोज, क्या कहते हैं, इरिथ्रोज कॉन्फ़िगरेशंस। थोड़ा सा नाम अजीब सा है, अजीब सा नाम है थोड़ा, बोलते ना अजब, अजब की गजब, अजब की क्या होती है, गजब होती है। इरिथ्रोज कन्फर्मेशन, इसका भी नाम आहे बेटा इरिथ्रोज, ये भी इरिथ्रोज आहे। इरिथ्रोज कशाला म्हणायचं, फिशर कन्फर्मेशन मध्ये 2 हायड्रोजन एटम जर सेम साइटला असेल तर त्याला इरिथ्रोज कन्फिगरेशन म्हणायचं बेटा। याच्यामध्ये मेसो काय असतं आणि डीएल काय असतं, या इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट, सेट, गेट, नीट, सीईटी, जेडब्ल्यू, आईआईटी, व्हाटएवर, कैसे क्वेश्चन, इरिथ्रोज कॉन्फ़िगरेशन, एक इरिथ्रोज दूसरा इरिथ्रोज का क्या होता है, एक इरिथ्रोज थ्रियोज का क्या होता है, व्हाट आई कैन से थ्रियोज। आता मला सांगा हे 2 हायड्रोजन एटम या फिशर मध्ये कसे आहेत, म्हणजे यांचं पोझिशन कसं आहे, अपोजिट है ना, हे अपोजिट, हे सेम साइडला होतं म्हणून याला इरिथ्रोज म्हणलं बेटा, आणि अपोजिटला असेल तर काय म्हणायचं, थ्रियोज म्हणायचं। बघा किती सोपं आहे, व्हेरी व्हेरी सिंपल। If 2 hydrogen atoms in a Fisher conformation, 2 hydrogen atoms are on opposite, तो हम उसको क्या कहेंगे, थ्रियोज आइसोमर। मग आता क्वेश्चन काय येणार, थ्रियोजचं इरिथ्रोज काय असणार आणि इरिथ्रोजचं थ्रियोज काय असणार, इरिथ्रोजचं रिलेशन इरिथ्रोज सोबत काय असणार, थ्रियोजचं रिलेशन थ्रियोज सोबत काय असणार, यामध्ये आपल्याला कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा आहे। नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण याला एक्सप्लेन करणार आहोत। तर नेक्स्ट लेक्चर में अपन काय एक्सप्लेन करना आहोत। सबसे पहले हम समझते हैं आरएस को, जो कि रेक्टस होता है, सिनिस्टर होता है, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आता इथं आपण फिशर कन्फर्मेशन मध्ये काय शिकलो, फिशर कन्फर्मेशन में हमने क्या सीखा, यहाँ पे एरिथ्रोज और थ्रियोज कन्फर्मेशन क्या होता है। हमें यहाँ पे आरएस कन्फिगरेशन क्या है, स्मॉल डी और स्मॉल एल को तो हमने पढ़ लिया, डेक्स्ट्रोलियो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, रासमिक मिक्सचर, रासमाइजेशन हमने उसको कहा, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा। आरएस इसको एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन कहा जाता है। मग हे एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन आपल्याला बघायचं आहे इन फिशर कन्फर्मेशन, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें लेके जाता है एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर कंसेप्ट की ओर। अब ये कंसेप्ट होने के बाद हमें कन्फर्मेशन देखना है, कन्फर्मेशन इन सायक्लोअल्केन, सायक्लोहेक्सेन, बोट कन्फर्मेशन काय असतं, चेयर कन्फर्मेशन काय असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टॅबिलिटी सांगायची बेटा, सिस्टन्स, जॉमेट्रिकल आयसोमर सांगायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला फिशर मध्ये ऑप्टिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है ये भी बताना है। तब हमारा जाके कंसेप्ट कंप्लीट होता है आइसोमर, which is involved in the part of syllabus, that is the MSc first year organic chemistry, paper number CHE 100. It is most useful for any competitive exam,
NEET, CET, JEE, IIT, NET, SET, GATE and also your PG एग्जाम। तो चलो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने लिया। सबसे पहले हमने बताया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो का मीनिंग बताया, फादर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया, नोबेल प्राइज के बारे में हमने डिस्कस किया, आइसोमर के टाइप्स कौन से होते हैं ये बताया, दो टाइप्स बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया हमने। पहला टाइप्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर का, जो कि हमने 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमर बेटा, स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप्स हमने देखे, एक कौन सा ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल में हमने सिस ट्रांस कंसेप्ट ये देखा, सिस ट्रांस ये देखो बेटा, यहाँ पे सिस और ट्रांस की हमने बात कही थी। सिस ट्रांस होने के बाद ई और शेड आइसोमर हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट समझ लिया। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है ये हमने देखा। सो एज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकली फिनोमेनन, सो दैट इज व्हाट हियर, ये हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट समझा। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अकायरल क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद व्हाट इज एप्लीकेशंस। उसके बाद में हम एनांशियोमर और डायस्ट्यूमर की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमने फिशर कन्फर्मेशन क्या होता है ये समझ लिया। फिशर कन्फर्मेशन में हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया कि एरिथ्रोज क्या है, थ्रियोस क्या है। एरिथ्रोज का रिलेशन थ्रियोस से, थ्रियोस का रिलेशन एरिथ्रोज से क्या होता है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस किया। फिर कुछ और बातें हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके आगे हमने आरियस कंसेप्ट जो है रेक्टस एंड सिनिस्टर, इसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है, जो कि यूजफुल होता है, विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर द कंसेप्ट फॉर एज यू कैन से एनांशियोमर एंड डायस्ट्यूमर। एनांशियोमर क्या होता है, डायस्ट्यूमर क्या होता है, और उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर इन व्हाट सम साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज चेयर कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशंस, एंड here we will again discuss some questions regarding your PG exam and what computer exam like NET, SET and GATE.